فلسطین کی صورتحال پوری امت مسلمہ کے لیے باعث تشویش ہے، باعث اضطراب ہے اور باعث غم و کرب ہے۔ اس اعتبار سے 27 اپریل کو یہاں لاہور مینار پاکستان پر ایک بہت بڑا جلسہ بھی ہوگا، مظاہرہ بھی ہوگا، اور اس میں پنجاب کے عوام کو دعوت دی گئی ہے۔ انشاءاللہ بہت اچھا رسپانس ہوگا پبلک کا۔ مولانا فضل الرحمان کا اتحاد امت کے نام سے پلیٹ فارم تشکیل دینے کا اعلان۔ 27 اپریل کو تمام مذہبی جماعتوں کو مینار پاکستان جلسے میں شرکت کی دعوت۔ منصورہ میں میڈیا سے گفتگو کرتے بولے، حکمران غزہ کے لیے اپنا فرض کیوں ادا نہیں کر رہے؟ یکسو ہو کر غزہ کے فلسطینیوں کے لیے بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ فلسطین کے لیے پورے ملک میں بیداری مہم بھی چلائیں گے۔ آئینی ترمیم پر ہر جماعت کے اپنے نکات ہوتے ہیں۔ ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ 26ویں آئینی ترمیم آئیڈیل ہے۔ دھاندلی پر ہمارا اور جماعت اسلامی کا موقف بہت زیادہ مختلف نہیں۔ پانی کی تقسیم آئین اور قانون کے مطابق ہونی چاہیے۔ آئینی ترمیم کا معاملہ تھا، اس پر جماعت اسلامی کا اپنا ایک موقف تھا اور مولانا اپنا ایک موقف پیش فرما رہے تھے، اور مولانا چونکہ انگیج تھے مختلف پارٹیوں کے ساتھ، تو یہ تو اپنی صورتحال کو خود ہی بتا سکیں گے کہ وہاں کیا ہوا تھا، بتاتے بھی رہے میڈیا کے سامنے۔ لیکن جماعت اسلامی کا اپنا ایک موقف تھا کہ ہم 26ویں آئینی ترمیم کو پسند نہیں کرتے تھے، اور ہم نے اس کو کلیتاً مسترد کیا تھا کہ اپنے اپنے پلیٹ فارم سے مختلف چیزوں پر ہم جد و جہد کریں گے۔ دنیا میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ فلسطین کا ہے۔ فلسطین سے متعلق ہم مولانا فضل الرحمان کے موقف کے ساتھ ہیں۔ دونوں جماعتیں اپنے اپنے پلیٹ فارم سے جد و جہد کریں گی۔ ہم فوری نئے الیکشن نہیں بلکہ فارم 45 کی بنیاد پر نتائج چاہتے ہیں۔ 26ویں ترمیم پر جماعت اسلامی کا اپنا موقف تھا اور فضل الرحمان کا اپنا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی مولانا فضل الرحمان کے ہمراہ پریس کانفرنس۔ جے یو آئی اور جماعت اسلامی کے اتحاد سے حکومت کو کوئی خطرہ نہیں۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کا اعلان، بولے ملکی معیشت ترقی کر رہی ہے، صرف ایک جماعت کی جانب سے معمولی نوعیت کے سیاسی بلبلے بنتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان اور جماعت اسلامی کا اتحاد سیاسی طور پر خوش آئند ہے۔ دونوں جماعتیں ماضی میں بھی متحدہ مجلس عمل کے پلیٹ فارم سے کاوشیں کر چکی ہیں۔ حکومت جب سپورٹ پرائز کے مسئلے سے باہر نکل رہی ہے تو اسے کسانوں کے دیگر مسائل کو بھی دیکھنا ہوگا۔ پاکستان نے اپنے آپ کو انٹرنیشنل کمیونٹی میں رہنے کے لیے اور وہاں پہ اپنا رول پلے کرنے کے لیے ہم نے ریسنٹلی نہ صرف جو یو این کی ریکوائرمنٹس ہیں ان کے مطابق جو قانون سازی ہے وہ بل تیار کر لیا ہے، جس پہ صوبوں کی جو ہے مشاورت کے ساتھ صوبوں کی اسمبلیوں نے وفاق کے لیے اس میں ریزولوشنز بھی کر دی ہیں۔ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد مزید کسی ترمیم کی ضرورت نہیں۔ ملک میں آئین معطل نہیں۔ خواہش ہے کہ کراچی کی طرح لاہور میں بھی ایک ہی جگہ عدالتیں ہوں۔ زیادہ فائدہ بار اور پھر سائلین کو ہے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے پلان حکومت پنجاب کو بھیجا ہے۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی میڈیا سے گفتگو، بولے جب آپ فوجی تنصیبات پر حملے کریں گے تو پھول نہیں پہنائے جائیں گے، جب سرکاری ابلاغ جائیں گے، پولیس کی گاڑیاں جلائیں گے تو آپ کو پھول نہیں پہنائے جائیں گے۔ نہروں کا مسئلہ بہت بڑا ہے، پورے سندھ کے عوام ایک سائٹ پر کھڑے ہیں۔ وزیراعظم سب کو بٹھائیں اور کوئی فیصلہ کریں۔ جو چیز پہلے لکھی ہوئی ہے اس کو ضرور مد نظر رکھیں۔ پیپلز پارٹی مل کر چلنا چاہتی ہے، ضمنی انتخابات میں بھرپور حصہ لیں گے۔ گورنر پنجاب سلیم حیدر کی منظر عباس کھوکھر سے ان کی والدہ کے انتقال پر اظہار تعزیت کے بعد میڈیا سے گفتگو۔
वज़ीर सनअत चौधरी शाफी हुसैन से फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स के वफ़द की मुलाकात। फार्मास्यूटिकल वैली के क़याम की तजावीज़ का जायज़ा लिया। अदविया साजी सेक्टर की बरामदात बढ़ाकर मुल्क के लिए कीमती ज़र मुबादला कमाया जा सकता है। फार्मास्यूटिकल सेक्टर हज़ारों लोगों को रोज़गार की फराहमी का भी बड़ा ज़रिया है। वज़ीर सनअत व तिजारत चौधरी शाफी की गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आला पंजाब का गंदम के काश्तकारों के लिए 110 अरब रुपए का पैकेज। गंदम के काश्तकारों के लिए 25 अरब रुपए की वीट फॉर स्पोर्ट प्रोग्राम इमदादी पैकेज की मंजूरी। गंदम के 5 एकड़ पर काश्तकारों को 25,000 रुपए मिलेंगे। सूबाई वज़ीर ज़राअत को गंदम खरीदारी मुहिम की मॉनिटरिंग करने की हिदायत। बैंक ऑफ पंजाब को 100 अरब रुपए की क्रेडिट लाइन कायम करने का हुक्म। वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसलों की मंजूरी दी गई। जो किसानों का इशू है उसके ऊपर जो है वो उसको तड़का लगाया जो बिलावल भुट्टो साहब ने। उन्होंने एक बहुत तुंदो तेज़ किस्म की तकरीर फरमाई और उस पर उन्होंने पंजाब के किसानों के बारे में बात की और मेरी पार्टी के बारे में बहुत तल्ख जुमले जो हैं वो उन्होंने इस्तेमाल किए। किसानों के मामले पर बिलावल भुट्टो ने तड़का लगाया। किसानों का नाम इस्तेमाल करके सियासत की जा रही है। पंजाब हुकूमत ने अपने किसानों को लावारिस नहीं छोड़ा। गंदम के काश्तकार को 5,000 रुपए फी एकड़ मिलेंगे। पंजाब में हालात खराब करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की DGPR में प्रेस कॉन्फ्रेंस। स्पीकर मलिक अहमद खान की ज़ेर सदारत पंजाब असम्बली का इजलास। अपोजिशन के ऐवान में नारेबाजी करते हुए एंट्री। मुसवदा कानून तरमीम इलाकाई मनसूबाबंदी अथॉरिटी। मुसवदा कानून तवानाई का मौसर इस्तेमाल और तहफ़्फ़ुज़ एजेंसी मंजूर। बिल वज़ीर पार्लिमानी अमूर मुश्तबा शजाउर रहमान ने पेश किया। अपोजिशन की तमाम तरमीम मुस्तरद कर दी गई। कोरम पूरा न होने पर ऐवान की कार्रवाई कल 2 बजे तक मुलतवी कर दी गई। स्कूलों में मील प्रोग्राम की तोसी देने का फैसला। पंजाब के सरकारी स्कूलों में तलबा को मुफ्त खाना प्रोग्राम 10 अजला तक बढ़ाया जाएगा। स्कूल मील प्रोग्राम पर मजीद 15 अरब की लागत आएगी। प्रोग्राम को अगले माली साल में तोसी दी जाएगी। ज़राए के मुताबिक तलबा की इनरोलमेंट में 55,757 का इजाफा हुआ है। स्कूल मील प्रोग्राम के लिए आलमी फंडिंग भी हासिल की जाएगी। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर का अहम मनसूबा अफसरान की नाक़िस हिकमत अमली की भीड़ चढ़ गया। पंजाब हेल्थ एंड वेलनेस रेडियो स्टेशन के क़याम के मनसूबे की लागत 4 गुना से भी बढ़ गई। 9 करोड़ 95 लाख रुपए का मनसूबा लागत में इजाफे से 42 करोड़ 13 लाख रुपए का हो गया। अफसरान की नाक़िस हिकमत अमली से रेडियो स्टेशन के क़याम का मनसूबा अब जून 2026 में मुकम्मल होगा। शहर में 1 खरब 37 अरब के तरक्याती कामों के पैकेज का मामला। लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम सुस्त रवि का शिकार। अलाइड महकमों की नाकिस कोऑर्डिनेशन। हजारों गलियों की तामीर और बहाली का काम ताख़ीर का शिकार होने का खदशा। सैकड़ों तरक्याती स्कीमों के वर्क ऑर्डर जारी। महकमा सुई गैस ने गलियों में गैस पाइपलाइंस न होने से आगाह कर दिया। ज़राई इंतजामिया ने महकमा PND और कमिश्नर लाहौर को ताख़ीर बारे खत लिख दिया। रेलवे का रिहायशी कॉलोनियों में रिटायर्ड मुलाजमीन से घर खाली करवाने का फैसला। रिटायर्ड मुलाजमीन को फौरी तौर पर रिहायशी क्वार्टर्स खाली करने के लिए नोटिस जारी। रेलवे ज़राए के मुताबिक सैकड़ों रिटायर्ड मुलाजमीन ने मुद्दत मुकम्मल होने के बावजूद रिहाइश गाहें खाली नहीं की। रिटायर्ड मुलाजमीन की जानिब से रिहाइश गाहें खाली न किए जाने की वजह से हाजिर सर्विस मुलाजमीन को रिहाइश गाहें मैसर नहीं हैं। मरियम स्पीड का पंजाब में लैंड रिफॉर्म्स का बड़ा इक़दाम सामने आ गया। पंजाब हुकूमत शहरी और इलाकाई तरक्की को मुनज़्ज़म करने के लिए नई अथॉरिटी बनाई गई। नई अथॉरिटी पंजाब स्पेशल प्लानिंग अथॉरिटी के नाम से जानी जाएगी। तमाम अजला की डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ को तरक्याती स्कीम शुरू करने से कबल मंजूरी लेना होगी। पंजाब स्पेशल प्लानिंग अथॉरिटी एक्ट 2025 पंजाब असम्बली से मंजूर करवाया जाएगा।
पंजाब पुलिस में डीपीओज के तबादले जल्द मुतवक्को। वज़ीर आला मरियम नवाज ने डीपीओज की पोस्टिंग के लिए अफसरान के इंटरव्यूज मुकम्मल कर लिए। वज़ीर आला पंजाब ने 10 अफसरान के इंटरव्यूज किए। डीपीओ विहाड़ी, डीपीओ बहावलपुर, डीपीओ लोधरा के लिए अफसरान के इंटरव्यू किए गए। सीबीडी पंजाब की तरफ से रूट 47 पर लगाई गई पाबंदियां खत्म। मोटरसाइकिल और रिक्शे की एंट्री पर आयद पाबंदी खत्म कर दी गई। कलमा चौक से वाल्टन रोड तक बनाए गए रूट 47 से पाबंदी का नोटिस बोर्ड हटा दिया गया। 27 अप्रैल को रूट का बाकायदा इफ्तिताह किया जाएगा, जिसके बाद रूट को ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। लाहौर को आलूदगी से बचाने का मिशन। गाड़ियों के साथ अब मोटरसाइकिल्स को भी फिटनेस सर्टिफिकेट लेना होगा। फिटनेस सर्टिफिकेट से स्मोक पर काबू पाने में मदद मिलेगी। मोटर गाड़ियां तरमीमी एक्ट 2025 के नाम से नया बिल भी पंजाब असम्बली में पेश। ऑर्डिनेंस 1965 की शिक 38A में गाड़ी के साथ मोटरसाइकिल का लफ्ज लिखा जाएगा। एलडी सिटी हाउसिंग स्कीम में डेवलपमेंट चार्जेस की अदम अदायगी, तरक्याती काम और रिकवरी न होने से अथॉरिटी को 1 अरब से ज़ायद का नुकसान। एलडीए ने अलॉटीज को आखिरी मौका देकर 2 माह की मजीद तोसी दे दी। एलडीए सिटी हाउसिंग स्कीम के हज़ारों प्लाट मालिकान ने डेवलपमेंट चार्जेस अदा नहीं किए। लाहौर के 8 आफ्टरनून स्कूल्स में स्टाफ के गैर हाजिर होने का इंकशाफ। सीईओ एजुकेशन ने स्टाफ को गैर हाजिर होने पर इंक्वायरी के लिए तलब कर लिया। मज़कूरा स्कूल्स में 5 तहसील शालीमार, 2 मॉडल टाउन और 1 तहसील कैंट का स्कूल शामिल। इंक्वायरी के बाद मुतल्लिका स्कूल्स को आइंदा चलाने या ना चलाने का फैसला किया जाएगा। गंदम की कीमत के तयन के लिए दायर दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद 22 अप्रैल को समाअत करेंगे। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि हुकूमत को गंदम की कीमत मुतय्यन करने का हुक्म दिया जाए। शायर मशरिक मुफक्कर पाकिस्तान अल्लामा मोहम्मद इकबाल का आज यौम वफ़ात। एक ऐसी शख्सियत का यौम वफ़ात जो अपने पैकर में बैक वक्त फ़लसफ़ी, शायर, अदीब और इंशा पर्दास के पहलू समेटे नजर आती है। अल्लामा मोहम्मद इकबाल के देखे हुए ख्वाब की बदौलत मुसलमानाने बर सग़ीर को अपनी मंजिल का निशान मिला। मुसलमानाने बर सग़ीर को उनकी मंजिल का पता देने वाली यह हुम्मा जहद शख्सियत 21 अप्रैल 1938 को इस दाने फ़ानी से कूच कर गई। अल्लामा इकबाल की 87वीं बरसी के मौका पर मज़ार इकबाल पर तकरीर। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। मज़ार इकबाल पर हाज़री, फूल रखे और फातिहा ख़्वानी की। एहसन इकबाल ने मेहमानों की किताब में अपने तासुरात भी कलमबंद किए। कहा, अल्लामा इकबाल ने ग़ुलाम में जकड़ी कौम को आज़ादी का शौक़ दिया। अल्लामा इकबाल की फ़िक्र पाकिस्तान की नज़रियाती असास और बुनियाद है। हुकूमत ने हर सतह पर इक़बाल इकबाल की तरवीज का फ़ैसला किया है। अल्लामा इकबाल की फ़िक्र ने एक मुर्दा कौम को, ग़ुलामी में जकड़ी हुई कौम को आज़ादी का शऊर दिया और उस कौम को न सिर्फ शऊर दिया बल्कि क़याम पाकिस्तान का तसव्वुर भी पेश किया, जो मुसलमानान जनूबी एशिया को आज़ादी की मंजिल से हमकिनार कर सकती थी। और हज़रत कायद आज़म अलैहि रहमा को उन्होंने कायल किया कि वो मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म से जनूबी एशिया में आज़ाद मुस्लिम रियासत की जद्दोजहद की क़यादत करें। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के मज़ार इकबाल पर हाज़री, शायर मशरिक की कब्र पर फूल रखे और फातिहा ख़्वानी की। मोहसिन नकवी ने मुल्क की सालमियत, इस्तेहकाम और तरक्की के लिए ख़ुसूसी दुआ की। कहा, अज़ीम मुफक्किर इकबाल ने खुदी, इत्तेहाद और भाईचारे का आलमगीरी पैगाम दिया। अल्लामा इकबाल का फ़लसफ़ा आज भी मशअल राह है। अल्लामा इकबाल का एहसान कौम ता क़यामत नहीं उतार सकती। इकबाल के फ़लसफ़े के मुताबिक हमें हर चैलेंज का मुकाबला मिलकर करना है। लाहौर समेत पंजाब भर में इंसदाद पोलियो मुहिम जारी। 7 रोज़ा मुहिम में 2 करोड़ 30 लाख से ज़ायद बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। पंजाब भर में 2 लाख से ज़ायद वर्कर्स ड्यूटी सर अंजाम दे रहे। लाहौर में 14,000 से ज़ायद वर्कर्स ड्यूटी अदा कर रहे हैं। सरबराह इंसदाद पोलियो प्रोग्राम अदील तसव्वुर का कहना था, वालिदैन कौमी फरीज़े में भरपूर साथ दें।
पोलियो एक खतरनाक मर्ज है, बच्चों को उम्र भर के लिए माजूर कर सकता है।